Well, hello, good morning. So we are done with the our first four chapter, and now there are only two units left, which is all about the object-oriented programming and file operations. बहुत ही छोटे unit है, and the weightage of those two units has 12 marks each. Means now we have only 24 marks remaining from all of our syllabus module. So in today's lecture, we are going to start our fifth unit, which is all about the object oriented programming in Python. So we are totally familiar about the object oriented programming concept. Like in the C++, we have started this OOP thing, right? So OOP is all about the classes and objects. So आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले हैं, because the core part of the OOP is classes and objects. Then we are going to see the abstraction, inheritance, or data hiding. Then बहुत सारी चीजें हैं जो OOP को और पॉपुलर बनाती है. सो हम लोग वो वन बाय वन देखने वाले. बट एट द इनिशियल वी आर we would focusing on the thing of classes and objects. Okay, so आप लोग को पता ही है classes objects क्या होते हैं. फिर भी एक थोड़ा brief recap about the classes and objects. So classes is the term, या फिर हम लोग बोलते हैं classes is the blueprint for, या फिर storage element where we can store uh, the different objects. Okay, and objects is the instance of class, and classes is the blueprint of the object. So these two terms are totally dependent on each other. Suppose our uh, fyco is a sorry pyco is a class, and you individual, me, then the blackboard, duster, books are the objects of our tyco class. Okay, so इतना बेसिक आइडिया तो आप लोग को है ही. सो सेम चीज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में. ओके, Okay, so Python is an object-oriented programming language like C++, Java, PHP. बहुत सारे object-oriented programming language है, ठीक है. So unlike procedure-oriented programming, जो अपनी programming in C थी, where the main emphasis is on functions. Okay, where we are focusing only on the functions. So instead of focusing of the functions on the functions, in the object-oriented programming, we mainly impact to the objects. Okay, because object is the core part of OOP. An object is simply a collection of data variables and methods that act on those data. Similar, a class is a blueprint for that object, जैसे मैंने अभी बोला. So we can think of a class as a sketch या फिर prototype of a house, जैसे कि TYCO. So TYCO is our prototype, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, we can say that the sketch of the house, and it contains all the details about the floors, doors, windows, etc. So based on these descriptions, we build the house. So house is the object. So similarly, you individual, then me, means in actual class, in actual academic class, one teacher, one student, then blackboard, book, duster, bench, these all kind of things are nothing about the object. Okay, so as many houses can be made from a houses blueprint, so we can create multiple classes, in the sense we can say the multiple houses, right? So we can create many objects from a class. So जैसे हम लोग बहुत सारे classes बना सकते हैं, बहुत सारे houses बना सकते हैं, वैसे हम लोग with respect to that class, with respect to that house, we can create a n number of object as well. So an object is also called as an instance of a class. Okay, वो क्या है, एक instance है class का. क्लास को रेफर करके हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं. And the process of creating the objects called instantiation. So whenever we creating, मतलब हम लोग ये जावा में भी ये प्रोसेस को इंस्टेंशिएशन ही बोलते थे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि पाइथन में हम लोग इसे सिर्फ एक अलग हटके नाम दे रहे. ओके, द थिंग इज, द कॉमन थिंग इज, whenever in uh, it doesn't matter the what programming language you are using, whenever you create one object from one class, the process is happening. Okay, and that process is nothing about the instantiation, जहाँ पे हम लोग object create करते हैं. Okay, then the next topic is defining a class in Python. Now we have to define, or
जैसे मैंने बोला कि पाइथन इज अ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज नाउडेज, मतलब जितने भी सारे वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो है या फिर रोबोटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द पाइथन। रोबोटिक्स के बेस्ट में मशीन लर्निंग, अगर मुझे मशीन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना है, सो पाइथन प्लेज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। एंड मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि पाइथन इतना इंपॉर्टेंट है, कोर्सेस भी भेजे मैंने आपको बहुत सारे, बट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ पाइथन। मतलब जो हम लोग ने पहले चीजें जो पढ़ी वो कॉमन ही थी, सब सारे लैंग्वेजेस में कॉमन ही थी, सिर्फ उसका सिंटैक्स थोड़ा इधर उधर था। बट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द हार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट, नॉट ओनली इन द पाइथन बट पाइथन अभी पॉपुलर है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, सो एट द टाइम ऑफ मशीन लर्निंग यू वोंट सफर, you won't get confused of what is going on between this machine learning। मतलब वो आगे वाला पार्ट है ऑब्वियसली, बट ये चीज कितने इंपॉर्टेंट है या फिर इसका इम्पैक्ट कितना रहने वाला है आगे जाके फ्यूचर में, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो बैक टू पॉइंट, डिफाइनिंग अ क्लास इन पाइथन। सो there is a one syntax which each and every programming language followed। Similarly Python follows one kind of सिंपल स्ट्रक्चर, बिकॉज पाइथन में सेमीकोलन नहीं है, यही पाइथन की स्पेशलिटी है, यही चीज पाइथन को यूनिकली क्लासिफाइड करती है। ठीक है, बहुत ही कम लाइन में हम लोग बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कोड लिख सकते हैं पाइथन में। सो लाइक फंक्शन डेफिनेशन बिगिन विद द DEF कीवर्ड इन पाइथन। हम लोग अगर फंक्शन अगर मुझे मेंशन करना है, सो हम लोग DEF कीवर्ड से लिखते हैं। ठीक है, DEF एडिशन, DEF सब्ट्रैक्शन, DEF रिजल्ट। सो सिमिलरली for the class definition being with a class keyword। so similarly आपको अगर class लिखना है पाइथन में, so आप लोग कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? class। सेम है, हम लोग C++ में भी सेम कीवर्ड यूज करते थे। लाइक क्लास, अगर मुझे एक क्लास बनाना है मूवी के लिए, सो क्लास मूवी ऐसे में लिखा था, राइट? देयर इज नो चेंज। सो द फर्स्ट थिंग इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग एंड हैज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्लास। सो यहाँ पे कोई कोई चीजें डिस्टिंक्ट है, सो वही हम लोग देखने वाले। सो जैसे हम लोग क्लास लिखेंगे, क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम, यहाँ पे देखो क्लास माय न्यू क्लास। ओके, सो उसके बाद जो आप लोग फर्स्ट थिंग लिखने वाले हो इनसाइड द क्लास बॉडी, दैट थिंग इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग, जो यहाँ पे ट्रिपल कोट में लिखी है, दिख रही है? ओके, सो दैट थिंग इज ऑल अबाउट द डॉक स्ट्रिंग इन और पाइथन क्लास। although not mandatory, मतलब कंपल्सरी नहीं कि आपको लिखना ही है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड, बट अगर लिखा सो इट हेल्प्स टू कंपाइलेशन पार्ट, इट हेल्प्स टू डिबगिंग पार्ट एंड मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस है अगर लिखा तो। ठीक है, सो हियर इज अ सिंपल क्लास डेफिनेशन। क्या किया? अ क्लास क्रिएट्स अ न्यू लोकल नेम स्पेस वेयर ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स में भी डेटा और फंक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने क्लास लिखा है माई क्लास और दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास। ये देखो, ये डॉक स्ट्रिंग है। हाँ, ओके, जो प्रिंटफ में हम लोग लिखते थे वैसे आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, एंड पास कीवर्ड। सो देयर आर ग्लोबल स्पेशल attributes in it that begins with a double underscore. For example, dog, okay, gives us the dog string of that class. So we simply write the dog and it will means using this double underscore scenario and dot operator we can access the dot, ये जो डॉग स्ट्रिंग है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन एक्सेस द lot of things regarding to Python programming. Okay, so as soon as we define a class, a new class object is created. So whenever we define class, the new class object is created automatically with the same name। हाँ, मैं फिर एक बार फिर रिपीट करता हूँ। a new class object is created with the same name whenever you define the new class। Got it? So this class object allows us to access the different attributes as well as instantiate new objects of that class। So आप लोग ने एक क्लास बना दिया पर्सन नाम का। ओके, सपोज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए आप लोग कोडिंग कर रहे हो पाइथन में। सो व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप में हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, मतलब इनबॉक्स है। ठीक है, सो आपने क्लास बनाया इनबॉक्स। सो whenever you create one inbox class in using Python for the WhatsApp, so the Python allows you to automatically create one object
for that inbox class. Okay, and using that object you can create, फिर आप लोग वो लास्ट दिन उसका दिखाना है या फिर ब्लू टिक, डबल टिक, सिंगल टिक, वो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है. द थिंग इज whenever you create one class in Python, the Python compiler automatically creates one object for it. Clear? Okay. So see here, हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी क्लास बनाया है. द नेम ऑफ द क्लास इज पर्सन. ओके, दिस इज माई डॉग स्ट्रिंग, दिस इज अ पर्सन क्लास. मतलब ये एक छोटा डिस्क्रिप्शन रहता है अबाउट द क्लास, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. ओके, इनसाइड द क्लास आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल नेम्ड एज एज एंड द वैल्यू ऑफ एज इज 10. ओके, सो उसके बाद एक फंक्शन बनाया मैंने ग्रीट नाम का, और उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है सेल्फ. ओके, एंड प्रिंट हेलो. सो आउटपुट में देखो, आउटपुट में क्या आएगा, 10. एज क्या है पर्सन की, 10 है. अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ पर्सन डॉट एज, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 10. अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ पर्सन डॉट ग्रिड, सो ग्रिड में क्या है, सेल्फ है. सो फंक्शन पर्सन डॉट ग्रिड करके आ गया, क्योंकि मैं सेल्फ में कुछ लिखा नहीं है मैंने. हाँ, अगर मैं डॉग कर रहा हूँ सो ये दिस इज अ पर्सन क्लास आ रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे देखो वो ये तीन चीजें ऐसे एज आउटपुट के तौर पे आपको मिल रही है. ठीक है. Okay, then the next important task is creating an object in Python. Okay, so we saw that the class object could be used to access different attributes. Okay, it can also be used to create new object instances. Obviously, अगर मैंने class create किया है, so I am able to create the objects for that respective class as well. Okay, and जो process हम लोग करने वाले object creation की, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, instantiation. So आपका अभी ऑनलाइन एग्जाम है, सो उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेनेवर यू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास, द प्रोसेस इज नोन एज डैश डैश डैश. ओके, सो इंस्टेंशिएशन इज द आंसर फॉर दैट. So the procedure to create an object is similar to function call. So हम लोग जैसे फंक्शन कॉल करते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये अपना टर्मिनल का सिंबल है. ये से इतना इंपॉर्टेंट मत रखो, मतलब ये सिंटैक्स के बॉडी में नहीं आ रहा है. दिस इज माय टर्मिनल सिंबल. ओके, यहाँ पे देखो हैरी नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, द क्लास नेम इज पर्सन. ठीक है, सो दिस विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नेम्ड एज हैरी. वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम प्रीफिक्स. सो हैरी यूज करके हम लोग अभी पर्सन क्लास के प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. that is my object oriented programming, right? So attributes may be data or a method. मतलब attributes क्या हो सकती है, उसके वेरिएबल हो सकते हैं या फिर उसके फंक्शंस हो सकते हैं, डेटा और मेथड. एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर करस्पॉन्डिंग फंक्शंस ऑफ दैट क्लास. और जो उसके मेथड से, मतलब ऑब्जेक्ट के मेथड से, वो उसके फंक्शन, मतलब फंक्शन और मेथड ये दोनों एक ही चीज है, ये वो लाइन कहना चाहती है. ठीक है, सो दिस मीन्स टू से सिंस पर्सन डॉट ग्रीट इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन डॉट ग्रीट, यहाँ पे हम लोग ने कुछ ग्रीटिंग वाला मैसेज पास नहीं किया था, सिंपली वी डिक्लेयर द फंक्शन नेम्ड एज ग्रीट. ओके, सो इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट विल बी मेथड ऑब्जेक्ट. सो अभी वो क्या हो गया, मेथड ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ओके, आई एम राइटिंग द सेम प्रोग्राम. ओके, Harry is equal to person, but the only thing is I am calling those data members and member functions using the object, using my newly created object. So यहाँ पे मैंने क्या किया, create a new object. ठीक है, इससे object create किया है. Okay, then the next is print person dot grid. Okay, print person dot grid. So उससे कुछ होने वाला है क्या, उससे यहाँ पे देखो error आ रहा है, because whenever I am simply calling the method name using class, the compiler throws an error. उसके बाद मैंने किया है print harry dot grid. So उससे भी error आने वाला है, क्योंकि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इनसाइड द प्रिंट बॉडी, और वो वैसे टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. ओके, बट यहाँ पे देखो थर्ड लाइन, harry dot grid method, so it will print the hello world. क्यों? क्योंकि उसने यूजिंग ऑब्जेक्ट वो एंटायर फंक्शन को कॉल किया. ओके, so whenever I am writing this line, this function is going to be executed. Clear? I hope you get the idea of what is classes and objects in Python. Next lecture में हम लोग उसे ये concept को और explore करेंगे. ठीक है, thank you.